हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता स्टडी स्कूल। आप सबका स्वागत है आज के नए सेशन में। वेलकम यू ऑल विद अ न्यू सेशन। और आई नो कि आप लोग अपनी जो स्टडीज़ है इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। जितना भी रिवीजन क्लासेस हैं या वट एवर वी हैव डन इन द क्लास, आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ रहे होंगे, है ना। नॉट ओनली इन इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ना, मैथ्स में, साइंस में, वट एवर द क्लासेस हमने यहाँ पे करा दिया है, वट एवर जो भी क्लासेस में हमने यहाँ करा दिया है, आप सबने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, ना। तो वंस अगेन वेलकम। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट वी आर हैविंग हाउ मेनी बुक्स, वी आर हैविंग टू बुक्स। ओके, ऑन नंबर वन वी हैव फर्स्ट फ्लाइट इन विच वी हैव प्रोज एंड पोइट्री, है ना। तो उस बुक का हमने ऑलरेडी कुछ पोर्शन कवर अप कर लिया है, सम ऑफ द पोर्शन हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. Now we are going to start with the another book. Okay, and what is the name of the another book? That is Footprints Without Feet. Okay, so we are going to start with the chapter number 1. And what is the name of the chapter? The name of the chapter is A Triumph of Surgery. Okay, very interesting chapter, very funny chapter, and somehow the chapter shows us the state of a doctor, the greediness, the thinking, the greediness thinking of a doctor. Okay, chapter is all about a way chapter is all about a dog. Okay, very interesting chapter is there, very funny chapter is there, because in this chapter we are going to read out something about an animal. And which animal we are going to read about? We are going to read about an animal, and the name of the animal is a we are going to read about a dog. Okay, and what is the name of that animal? Dog. That is Tricky. Okay, what is there in the chapter? We are going to study, we are going to read out something about a dog, and the name of the dog is Tricky. What is the name of the dog? It is Tricky. Along with that along with this dog, we will also study something about a doctor, and the name of the doctor is Dr. James Harriet. What is the name of the doctor? Doctor का नाम क्या है? The name of the doctor is Dr. James Harriet. Okay. So the chapter will move around doctor and a dog. Doctor and a dog. What? The chapter will move around a doctor and a dog. Okay. So what is there in the chapter? Let me tell you, let me give you a brief introduction of this chapter. That there is a dog in the chapter, and the dog is very like fond of eating. Okay, and who is the owner of that dog? Who is the owner of that dog? The owner of the dog is Mrs. Pumphrey. Who is the owner? It means उस dog का मालिक कौन है? Who is the owner of that dog? Mrs. Pumphrey. And Mrs. Pumphrey is somehow a rich lady. Okay, she is very rich. Okay, obviously she is very rich, so she owns a dog. Okay, and she kept the name of the dog as Tricky. She loved her dog very much. Okay, she wanted to take care of her dog. So to take care of her dog, उसने क्या किया? कहते हैं ना कि ज्यादा केयर भी क्या कर देती है, खराब कर देती है. ओके, सो शी वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट द डॉग. तो शी प्रोवाइडेड सम एक्स्ट्रा फूड टू द डॉग. उसने क्या किया, जो डॉग का फूड होता है ना, जितनी क्वांटिटी में उसको देना था, इंस्टेड ऑफ गिविंग द एक्चुअल क्वांटिटी, उसने क्या किया, डॉग को हर चीज को क्या किया, वॉट एवर शी प्रोवाइड्स हिम फॉर ईटिंग, उसकी डोज बढ़ा के, इट मीन्स उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करके दिया, है ना. सो ऑब्वियसली अब डॉग की जितनी क्वांटिटी है, जितनी डाइजेस्टिव सिस्टम की क्वांटिटी है ना उसके, कि वो इतना ही डाइजेस्ट कर पाएगा. अगर उससे ऑब्वियसली विल प्रोवाइड हिम सम एक्स्ट्रा फूड, तो इससे क्या होगा, डॉग विल सफर, है ना. डॉग को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, तो सेम थिंग ट्रिकी वाज आल्सो हैविंग. तो ट्रिकी ने स्टार्टिंग में तो क्या किया, एज मिसेस पंफ्री वाज प्रोवाइडिंग हिम एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा थिंग्स, है ना, टू ईट. तो ट्रिकी ने स्टार्टिंग में तो क्या किया, इट ऑल्सो kept on eating and eating and eating, है ना. So what happened at last? Tricky started suffering from a very severe disease. And what is the name of the disease? That is malnutrition. What was the name of the dog of that disease? That is malnutrition.
Okay, so what is a malnutrition? In Hindi, we can call it as, okay, I know some of the students from Hindi medium are also there. So that is why I am writing like this. Okay. So kuposhan, it means a person, the disease in which some nutrient things are missed out. हमें हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, अगर उनकी बॉडी में क्या हो जाती है, स्कैरसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, so just because of that the person starts suffering from this disease. And what is the name of that disease? That is malnutrition. Okay, so it means nutrition की कमी हो जाना, so that's called malnutrition. Okay, so what happened once Mrs. Pumphrey was taking her dog for a walk. खुद भी walk पे गई and she took her dog for a walk with her. So on the way, who met him? Dog से कौन मिला? And we can say who met Mrs. Pumphrey? Dr. Harriet. Who met Mrs. Pumphrey? Dr. Harriet. Okay, so when Dr. Harriet saw the condition of Tricky, so he was very much worried about him. Okay, and but the doctor came to know that maybe something is some problem, the dog is facing some problems. Okay, so Dr. Harriet called whom? Mrs. Pumphrey. That now what more thing I wanted to add over here, my dear children, that Dr. Harriet was a veterinary doctor. He was not an MD or something else. He was a veterinary doctor. Okay, and he was a permanent doctor of whom? He was a permanent doctor of Tricky. Clear? So when Dr. Harriet met with Mrs. Pumphrey, he told her that you should send Tricky. इसको कॉल करता है डॉक्टर हैरियट टू मिसेस पंफ्रे दैट यू शुड सेंड ट्रिकी टू मी फॉर सम डेज. कुछ टाइम के लिए आप ट्रिकी को क्या करो, मेरे पास भेज दो. एंड ट्रिकी हैज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एडमिट करना पड़ेगा बिकॉज ट्रिकी इज नॉट फीलिंग वेल. एंड इफ यू वांट दैट ट्रिकी शुड फील वेल, तो you need to hospitalized him. Okay, so जो मिसेस पंफ्री हैं वो ट्रिकी को कहाँ भेज देते हैं, डॉक्टर हैरियट के. ओके, तो यहां तक का जो पार्ट है मैंने आपको बताया. ओके, अब आगे का पार्ट जो है दैट वी विल रीड आउट, है ना. इतना भी हम रीड करेंगे और इससे आगे का पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे. ओके, तो इतना भी आई होप कि क्लियर हो गया. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ about the author who has written this chapter. The chapter is written by James Alfred Witt. Okay, will not read out something about this person, this guy, because nothing is nobody is gonna to ask anything from the author or a writer or a poet. Okay, will not get any of the question from the side of the poet from about the author. It was just for your knowledge that chapter has been written by whom? The chapter has been written by James Alfred Witt. Okay, then yeah, main points of the story. Okay, doctor's concern for the dog. So what is the main theme? What is the main point of the story? That I told you that Dr. Harriet, the name of the doctor was James and Harriet was his cast. So he was a veterinary doctor. Which doctor was he? He was a veterinary doctor. So you may see the condition of a dog, that the dog is not feeling well just because of eating a lot. Instead of a limited quantity, dog has eaten a lot. So that is why the dog has become very fat. Okay. So Dr. Harriet was really worried to see the dog Tricky. When Dr. Harriet met Tricky, at the time when Mrs. Pumphrey and Tricky was on the walk, so Dr. Harriet met them, and when he saw Tricky, he was really worried to see the condition of the dog, and the name of the dog is Tricky. Tricky was very fat, his eyes were red and rheumy. So his eyes were red, it means they were dull. Okay, eyes were not dull, it means the dog was not feeling very active, he was behaving in a very lazy manner. Okay, so eyes were also red and the eyes were not so active. So Mrs. Pumphrey, the mistress of Tricky, had been overfeeding him with malt. So what were the things that were given to Tricky? Question आता है,
why was Tricky suffering from the malnutrition and what were the reasons? The reason was Mrs. Pumphrey, who was the mistress, it means जो उसकी ऑनर थी, उसने ट्रिकी को क्या किया? She was overfeeding. Overfeeding means to provide him with some extra food. Overfeeding means to provide him with some extra food with malt, cod liver oil and bowl of Horlicks. Okay, so these things had to be given to children, है ना? But वो क्या करती थी ट्रिकी को? She keeps Tricky as her child. ये तो बच्चों को दी जाती है ना? एनिमल्स को थोड़ी दिया जाता है हॉर्लिक्स. तो दिस इज, अब वो क्या करती थी? ट्रिकी को क्या मानती थी? अपना चाइल्ड. ओके, सो दैट इज व्हाई शी वाज टेकिंग केयर ऑफ ट्रिकी एज हर ओन चाइल्ड. ओके, सो दीज आर द मेन पॉइंट्स. अब यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि व्हाई ट्रिकी वाज सेंट टू दी डॉक्टर एंड व्हाई, क्या रीजन हुआ, क्या जरूरत पड़ी कि ट्रिकी को डॉक्टर के पास भेजना पड़ा? बिकॉज ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम a very different kind of problem, that is malnutrition. Okay, so malnutrition से क्यों feel कर रहा था? Because she was giving Tricky some extra food and extra food खाने की वजह से he got fat and lazy. Tricky did not want to do any kind of work. He just wanted to lay down onto the ground. You may see in the picture also. Okay, then the doctor advises Mrs. Pumphrey. Now, what the doctors advised? The doctor advised that Dr. Harriet found that the only fault of Tricky was his greed for food. So, now the situation is at Dr. Harriet's house. Okay, Tricky was sent to where? Tricky was sent to Dr. Harriet's house. Okay, and now when Tricky was sent to his house, he kept Tricky at some place in his house, and then he came to know, then he started to examine Tricky that what is the problem, why Tricky does not want to do anything. वो कुछ भी नहीं करना चाहता है. He just wanted to lay down for a full day, for the entire day. Okay, so Dr. Harriet found that the only fault of Tricky was his greed for food. It means Tricky खाने के लिए क्या था, है ना? He was mad for eating. Tricky was mad for eating. उसको खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता था. He does not want to do anything. He only wanted to eat and eat. और उसका रिजल्ट देख लो क्या होता है ना? So the advice is for you also. If you are eating a lot and you are not doing a workout, so obviously you will also become as fat as Tricky, है ना? Don't take it otherwise. It was just for a fun, है ना? So he advised Mrs. Pumphrey to cut down his food intake and give him daily exercise. तो उसने क्या किया? मिसेस पम्फ्री को एडवाइस दी. क्या क्या को क्या करना पड़ेगा? ट्रिकी की जो फूड की क्वांटिटी है ना, उसको कम करना पड़ेगा. यू शुड डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ट्रिकीज फूड एंड ऑल्सो एडवाइज्ड हिम टू गिव हिम डेली एक्सरसाइज. इट मीन्स वही जो अभी अभी मैंने आपको बताया, दैट मेक हिम डू सम वर्कआउट, है ना? वर्कआउट मीन्स अ काइंड ऑफ वॉक, कि आप इसको कहाँ पे लेके जाया करो? डेली वॉक पे लेके जाया करो. वॉक के साथ साथ इसको क्या करवाया करो? आप रनिंग करवाया करो. इज दैट क्लियर? देन ट्रिकी फॉल्स इल. अब आती है बात कि ट्रिकी बीमार होने लग गया. ट्रिकी वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड नाउ ट्रिकी फेल्ट सिक. ट्रिकी फेल्ट sick. Okay, ill. So within a few days, the doctor received a call from Mrs. Pumphrey. But जब उसने एडवाइस दिया on the way when Tricky, Mrs. Pumphrey and Dr. Harriet had a meeting, उन सब की मीटिंग हुई. ठीक है, डॉक्टर ने तो एडवाइस दे दी क्या कि आप इसका फूड का जो इनटेक है इसको क्या करो? इट शुड बी रिड्यूस्ड. उसको रिड्यूस करो. ठीक है, अलोंग विद दैट क्या करना है? आप इसको डेली एक्सरसाइज करवाइए. ठीक है, बट नथिंग चेंज वाज देयर. कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है, सो विद इन अ फ्यू डेज क्या किया? डॉक्टर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम whom? Doctor received a call from the owner of dog. Owner of the dog. And who was the owner of the dog? Mrs. Pumphrey. Okay, then Tricky was not eating anything and kept vomiting. अब क्या हुआ कि ट्रिकी ने पहले तो इतना ज्यादा खा लिया, अब लास्ट फ्यू डेज से ट्रिकी इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, इवन अ सिंगल मील. सिंगल मील मतलब कुछ भी नहीं खा रहा है. अब इंस्टेड ऑफ ईटिंग वो क्या करी जा रहा है? ट्रिकी इज कंटिन्यूसली वॉमिटिंग एंड वॉमिटिंग. ओके, सो he lay down panting and could not go for a walk. अब वो क्या है? बिल्कुल लेजी मैनर में क्या कर रहा है? जस्ट
तो वो क्या हो रखा है, बहुत ही लेजी हो गया और वो वॉक पे भी नहीं जा रहा है ट्रिकी। तो डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड। अब जब इतनी सी बात उसको बोली गई, बाय हुम, डॉक्टर हैरियट के थ्रू, तो डॉक्टर हैरियट ने क्या बोला कि ट्रिकी को क्या करना चाहिए, ट्रिकी शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसको क्या करना चाहिए, उसे मेरे पास भेज दो, एंड आई विल एडमिट हिम, ठीक है, एट माय क्लिनिक और हॉस्पिटल। ओके, तो अब ट्रिकी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। अब ट्रिकी को कहां पे लेकर जाया गया, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वी कैन से, यहाँ पे हॉस्पिटल का मतलब है एट डॉक्टर्स हाउस, एट डॉक्टर्स हाउस, ठीक है। कहां पे लेकर गए, डॉक्टर के हाउस पे। कौन से डॉक्टर के, डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट, clear? Then, at the surgery, the household dogs surged around Dr. Harriet and Tricky looked silently at them, lying motionless on the carpet. अब क्या हुआ, ट्रिकी, डॉक्टर हैरियट वाज हैविंग सो मेनी अदर एनिमल्स आल्सो, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स थे, बिकॉज ही वाज अ वेटरनरी डॉक्टर। तो उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को किनके साथ रखा, सम अदर स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स मींस डिफरेंट डॉग्स, है ना, बाहर जो घूमते थे वो वाले डॉग्स भी थे, एंड सम ऑफ द पेट डॉग्स वर आल्सो देयर। तो ट्रिकी को उनके साथ रखा, हाउस होल्ड डॉग्स मतलब अनदर जो उस घर पे ऑलरेडी थे। सर्च्ड अराउंड डॉक्टर, अब जैसी सर्जरी चल रही थी, सर्जरी मींस एट द टाइम व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, ओके, ट्रिकी वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड, उस टाइम पे ट्रिकी को क्या कर रखा था, हॉस्पिटलाइज्ड, ओके। हॉस्पिटलाइज्ड मींस एट द टाइम ऑफ सर्जरी, है ना। तो ट्रिकी को जब दूसरे डॉग्स के साथ रखा गया, तो दूसरे जो डॉग्स थे वो डॉक्टर हैरियट के अराउंड घूमते रहते थे, ठीक है। एंड बट ट्रिकी कैसा था, ट्रिकी वाज जस्ट अपोजिट टू देम, ट्रिकी कुछ भी नहीं करता था, इट मींस नो मूवमेंट वाज देयर फ्रॉम ट्रिकी साइड, ट्रिकी कोई भी मूवमेंट नहीं करता था, इट वाज जस्ट लाइंग एंड लाइंग ऑन टू दी कारपेट विदाउट एनी मोशन, बिना किसी मोशन के, यानी वी कैन से विदाउट एनी ऑफ दी एक्टिविटी, विदाउट एनी एक्टिविटी, without any activity, okay. So for 2 days Dr. Harriet kept an eye on Tricky and gave him no food but a plenty of water. अब जब डॉक्टर हैरियट को देखो पता चल गया था उसकी क्या प्रॉब्लम है ना, तो डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, फॉर नेक्स्ट 2 डेज ट्रिकी को कुछ भी खाने क्यों नहीं दिया, ठीक है, बिकॉज ही न्यू वेरी वेल कि ट्रिकी को एक्स्ट्रा फूड दे दिए, एंड ऑब्वियसली वो खा ईटिंग इतना एक्स्ट्रा उसने खा लिया कि अब उसको कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा है ना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू ईट एनीथिंग। तो उसने क्या किया, फॉर द नेक्स्ट 2 डेज उसको कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए, जस्ट गेव हिम अ प्लेंटी ऑफ वाटर, इट मींस अ लिटिल बिट वाटर, कुछ वाटर उसको दे दिया, लिटिल बिट मींस जितना उसको रिक्वायर्ड था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम, है ना, जितना वाटर उसको रिक्वायर्ड था वाटर उसको प्रोवाइड किया, ओके। नेक्स्ट डे द डॉक्टर वाज प्लीज्ड टू से ट्रिकी जॉसलिंग हिज वे टू हिज फूड बोल। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, व्हेन डॉक्टर हैरियट, ओके, डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, एक बॉल में सारे डॉग्स के लिए क्या किया, फूड डाल दिया, ओके, फूड वाज देयर। अब जैसे ही सारे के सारे डॉग्स जो थे, जैसे ही उनको फूड दिया गया बॉल में, तो ऑल द डॉग्स स्टार्टेड कमिंग ओवर हियर, जैसे ही फूड दिया तो सारे के सारे डॉग्स आकर बॉल के ऊपर क्या किया, दे अटैक्ड ऑन टू द बॉल, ऐसा ही होता है ना डॉग्स को जब हम फूड डालते हैं तो अब ऑल द डॉग्स कम टुगेदर एंड दे अटैक ऑन टू द फूड। तो हुआ, तो अब धीरे धीरे डॉक्टर ने देखा कि ट्रिकी भी क्या करने लगे, जॉसलिंग, जॉसलिंग मींस ट्रिकी भी अब कुछ एक्टिविटी करने लगे, कि पहले 2 डेज तो ट्रिकी ने कुछ भी नहीं किया, बट नाउ ट्रिकी हैड स्टार्टेड मेकिंग सम एक्टिविटी, कि जिससे उसे भी कुछ ना कुछ फूड मिल सके। तो नो मेडिकल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी। तो अब ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट था ना डॉक्टर ने इस वे में किया था। चैप्टर का तो नेम क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी मींस अ मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, बट ट्रिकी वाज नॉट गिवन अ मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रिकी को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, ओके। जस्ट उसको क्या किया गया, डॉक्टर ने कैसे उसको ट्रीट किया, ही केप्ट, डॉक्टर जो है, ही केप्ट ट्रिकी टू हिज होम फॉर सम डेज, and for the first 2 days Tricky was not provided with any of the food, but only he was provided with a plenty of water. Then Tricky's progress was rapid and he started running with the dogs. So
धीरे धीरे यही प्रोसेस को ट्रिकी के लिए क्या किया गया, द प्रोसेस वाज अप्लाइड फॉर ट्रिकी एंड आफ्टर सम डेज ट्रिकी ने क्या किया, प्रोग्रेस किया। अब उसका जो वेट था वो भी क्या होने लग गया, कम होने लग गया, इट वाज आल्सो रिड्यूस्ड, है ना। सो अब उसकी जो प्रोग्रेस थी इट वाज वेरी रैपिड एंड ही स्टार्टेड रनिंग विद द डॉग्स। अब जैसे दूसरे जो स्ट्रे डॉग्स थे या अनदर डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स थे, वो क्या भागते थे इधर उधर, है ना, एंड दे मेक सम एक्टिविटीज, दे हैड सम फन, तो वो सब कुछ उसको उनकी डॉग्स की वो कॉपी करने लगा। तो डॉक्टर हैरियट इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्री दैट ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर एंड वाज रिकवरिंग रैपिडली। तो डॉक्टर हैरियट, ऑब्वियसली डॉक्टर हैरियट का क्या, इट्स मॉरल ड्यूटी ऑफ डॉक्टर हैरियट टू keep informing the owner of the dog that your dog is now well and he is out of danger and he is now recovering. Okay, so same, the doctor performed his duty. So the excited Mrs. Pumphrey brought his fresh eggs. अब क्या हुआ, मिसेस पम्फ्री को बहुत खुशी हुई, है ना, कि मेरा जो डॉग है नाउ इट हैज रिकवर्ड, बहुत अच्छे से उसने रिकवर कर लिया, अब मुझे फिर से उसको क्या देना चाहिए, उसने रिकवर किया होगा, अब उसको उसकी मेडिसिन जो है, मेडिसिन और अच्छे से उसको क्या हो जाए, यूज होने लग जाए। इट मींस वो मेडिसिन जो ले, वो मेडिसिन से उसकी रिकवरी और रैपिड हो जाए। तो जस्ट फॉर दैट मिसेस पम्फ्री ने क्या किया, ट्रिकी के लिए क्या भेजने स्टार्ट कर दिए, एग्स, है ना। After that, wine also and brandy to build Tricky's strength. It means to build the immunity or strength of Tricky. Soon he was informed that Tricky had recovered and could go home. Okay, so अब ट्रिकी को कहाँ पे उसने बहुत जल्दी बोल दिया कि अब ट्रिकी को कहाँ पे लेके जाओ, ट्रिकी अब अच्छा है, ओके है, और ट्रिकी को कहाँ पे लेके जाना चाहिए, नाउ ट्रिकी शुड बी सेंट बैक टू दी होम। देन अभी यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग थिंग है, हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं वो थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, then grateful Mrs. Pumphrey, within 2 weeks Tricky had been transformed into a flexible and hard muscled animal. ठीक है, बाकी डॉग्स की तरह वो हो गया था, जबकि ट्रिकी ऐसा हो गया था ना, इतना मोटू हो गया था, है ना। तो when Tricky saw his mistress he leaped to her lap. तो Mrs. Pumphrey as Mrs. Pumphrey as Mrs. Pumphrey entered over there in the house of Dr. Harriet. So when Ricky saw Mrs. Pumphrey, like he was very happy, he was very excited to see Mrs. Pumphrey over there. So as mistress entered in the house of Dr. Harriet, so Tricky ran to Mrs. Pumphrey and leaped to her lap, और उसके lap पर आकर बैठ गया, है ना। So Mrs. Pumphrey thanked Dr. Harriet with her lips trembling and tears shining in her eyes। अब मिसेस पम्फ्री को बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या ये वही ट्रिकी है तो मैंने भेजा था, है ना, और वो फैट ट्रिकी, और अब कैसा है, नाउ द ट्रिकी इज फ्लेक्सिबल। देन और इवन उसको थैंक कर रही थी एंड शी वाज हैविंग टीयर्स इन हर आईज। ओके, शी कॉल्ड ट्रिकीज रिकवरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और फाइनली एट लास्ट जब वो ट्रिकी को लेकर जाती है तो कहती है कि ट्रिकी की रिकवरी क्या हो गई, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। नाउ थिंक the word triumph is, what is the meaning of the word triumph? Triumph का meaning होता है victory. What is the meaning of the word triumph? It is called a victory. Okay, now why is it called victory? Because मिसेस पम्फ्री को लग रहा था, शी वॉज लाइक, शी बिलीव्ड कि ट्रिकी का जो ये ट्रीटमेंट है ना, इसमें मे बी कुछ सर्जरी हुई होगी, है ना। दैट इज वाई जो इतना फैट था वो क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, है ना, वो फैट रिड्यूस हो गया। तो मे बी द डॉक्टर हैज परफॉर्म सम ऑफ द सर्जरी। सो ही सेड दैट डॉक्टर हैज achieved a victory onto the surgery of whom, onto the surgery of Tricky, है ना, onto the surgery of Tricky. Okay, Tricky's transformation. Now you may see this is Tricky, this is Tricky, and now after the surgery, or we can say after the time when Tricky was in the Dr. Harriet's house. Then theme of the story. The story A Triumph of Surgery is about a dog named Tricky. The theme of the story is about the blind love that Mrs. Pumphrey has for her pet dog. अब देखो, जो मिसेस पम्फ्रे थी, शी लव्ड हर डॉग, बट इतना भी उसको लव नहीं करना चाहिए कि शी वॉज इन अ ब्लाइंड लव। ओके, वो ट्रिकी की हेल्थ से ज्यादा, मतलब अपने अकॉर्डिंग तो ट्रिकी की वो हेल्प कर रही थी, बट इट वॉज नॉट गुड फॉर हिम। तो शी हैड नॉट नो आइडिया that her pampering and extreme love would cause him trouble. Okay, तो इसको उनको ये नहीं पता था कि वो इतनी मतलब
जिस वे में वो उसको पैम्पर कर रही थी, एक्स्ट्रा लव दे रही थी, एक्स्ट्रा केयर दे रही थी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रिकी को क्या हो सकता है, ट्रिकी कैन फेस सम प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम को सफर कर सकता है, ओके, फेस सम प्रॉब्लम्स, है ना। और वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स थी, द प्रॉब्लम वाज इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। सो एक्सेसिव लव मेड ट्रिकी सिक एंड बिकेम अ रीजन फॉर हिज इलनेस। तो एक्सेसिव लव, हद से ज्यादा उसका जो प्यार था ट्रिकी के लिए, उसने ट्रिकी को बीमार कर दिया, ओके। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ओवर indulgence in any form can lead to extreme consequences. So this is the message that the writer is trying to give us through this chapter, that कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट ओवर इंडल्जेंस इट मींस ओवर केयर, है ना, एक्स्ट्रा केयर, ये सब कुछ अगर हम किसी के लिए रखते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, नॉट ओनली इन ईटिंग, है ना, कोई पर्सन है अगर वो स्टडी कर रहा है, हम उसको एक्स्ट्रा पैम्पर करेंगे तो वो स्टडी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, है ना। सो कैन लीड टू एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस, कई सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ जाएंगी, एंड द पर्सन विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑल दोस प्रॉब्लम्स, ओके। नाउ अब क्या होता है किसी, माय डियर चिल्ड्रन, ये जो बुक है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फ्रॉम दिस बुक जो क्वेश्चंस आते हैं ना, दे कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर स्केच, ओके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर स्केच? क्वेश्चन विल कम लाइक दिस, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ Dr. Harriet, or you may ask like this also, कि write down या pen down a character sketch of whom, Dr. Harriet, either Dr. Harriet or Mrs. Pumphrey, है ना। So character sketch means draw, हमें draw नहीं करना है, we are not here, we are not asked to draw a picture, okay, हमें क्या करना है, character sketch, character means what are the qualities, what are the abilities or what are the disabilities, it means related to that particular character, हमें सब कुछ बताना है, whether the person was in a positive manner, और या तो हम उसको पॉजिटिव थिंग्स एस्पेक्ट्स को हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, इधर विल हाईलाइट दी नेगेटिव एस्पेक्ट्स, है ना, नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दी पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो Mrs. Pumphrey is a rich and resourceful lady. Resourceful means that she was not having any kind of scarcity. It means उसको किसी भी तरह की scarcity नहीं थी in any of the resource. Okay. So passionately attached to her little pet dog. तो वो बहुत attached थी अपने pet dog से. Pampers Tricky like a spoiled child. आपने देखा होगा ना कि कुछ बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना. It means हम कह सकते हैं कि जिनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, ओवर फैसिलिटीज, है ना, जिनको ओवर फैसिलिटेट कर दिया जाता है, सो ऑब्वियसली दे आर नॉट हैविंग, वो उनको उस चीज की वैल्यू नहीं हो पाती, है ना। सो ट्रिकी को भी ऐसा ही था। सो थिंग्स ट्रिकी टू बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो ओवर फीड्स हिम। अब उसको लगता है कि ट्रिकी को प्रॉब्लम के माल न्यूट्रिशन हो गया है, तो वो उसको और ज्यादा क्या करती है, शी प्रोवाइड्स हिम एक्स्ट्रा फूड, वो उसको एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड करती है। So gets worried about Tricky's falling health. So is impractical but very compassionate and caring. वो impractical थी, मतलब उसको ज्यादा नहीं था, उसको वो impractical का मतलब क्या है कि डॉग्स को जो नहीं भी देना था ना खाने के लिए, उसने वो सब कुछ दे दिया। As we have read in the chapter, क्या कि उसने eggs दिए, चलो eggs तो डॉग्स को हम दे सकते हैं, but Horlicks, is it required to the dog? No, not at all. It is not required to the dog. Then is grateful and thanks डॉक्टर हैरियट फॉर सेविंग ट्रिकीज लाइफ, और लास्ट में वो डॉक्टर को थैंक करती है, सो बिकॉज ही थॉट दैट ट्रिकी की लाइफ किसने सेव की है, डॉक्टर हैरियट। तो अब ट्रिकी का भी कैरेक्टर स्केच, एक स्मॉल डॉग था, ही वाज greedy for food, overeating on sweets, cakes, chocolates and make him obese, rheumy and listless, है ना। obesity, है ना, पढ़ा होगा आपने obesity वर्ड का मीनिंग। obesity मींस ज्यादा फैट, है ना, इट मीन जिसमें हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कुछ भी। then becomes a victim of overindulge and overfeeding. तो overindulge overfeeding ट्रिकी जो मिसेस पाम्फ्रे थे, उन्होंने इसको ओवरफीड करवा दिया, जिसकी वजह से वो उसका शिकार हो गया, किस चीज का, ओवरइंडल्जेंस। तो ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लेक्सिबल एंड हार्ड मसल डॉग, बाय whom, by डॉक्टर हैरियट, by whom, by Dr. Harriet. So displays his love for his mistress by jumping onto her lap when she comes to collect him. Okay, और जब ये जो मिसेस पम्फ्री उसको लेने आती है, तो ट्रिकी उसके ऊपर जंप कर देता है ना। देन
So now the character sketch of James Harriet is in front of you. Is a competent veterinary surgeon, is very sensible, practical and pragmatic, is genuinely concerned about Tricky, is tactful as well as full of common sense, cure Tricky without any medical treatment. The most important point, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना, कि क्या ट्रिकी की रियलिटी में, इन रियलिटी डिड द ट्रिकी go for this go from the process of treatment of surgery? No, Tricky was not gone through the process of surgery. So is compassionate about helping the animals. तो का जो ऑब्वियसली उनका जो प्रोफेशन था वो कैसा था, टू हेल्प दी एनिमल्स, एंड ही वाज वेरी परफेक्ट इन हिज प्रोफेशन. तो वैल्यूज, अब क्या सीखने को मिल रहा है हमें इस चैप्टर से? ओके, सो एक्सेसिव पैम्परिंग एंड इंडल्ज कोज हार्म. ओके, आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड, मुझे तो डर लग रहा है अब ट्रिकी को देख के, है ना. यू मे सी द पिक्चर. ओके, सी, है ना. अब वन शुड नॉट बी एक्स्ट्रावेगेंट विद विद रिसोर्सेज एंड मनी, है ना. अब इफ अ पर्सन इज हैविंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा मनी, तो उसको इतना भी क्या नहीं होना चाहिए, इतनी भी केयर नहीं शो करनी चाहिए जिससे कि क्या हो, पर्सन हैज टू सफर समथिंग, जिससे उस पर्सन या पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना पड़े, सफर करना पड़े. ओके, सो सम प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद प्रेगमेटिज्म. तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसके लिए हमें क्या होना पड़ता है, वी शुड बी प्रैक्टिकल. ओके, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है, और उस प्रैक्टिकल होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेस को वी कैन यूज वेरी प्रॉपरली, है ना, वी कैन यूज सस्टेनेबली. So this is all about the chapter. Ability is what you are capable of doing, motivation determines what you do, and attitude determines how well you do it. Okay, so 3 points we are going to learn with this chapter. Ability means what you are capable, it means कुछ जो भी आप करने लायक हो, है ना. Motivation determines what you do, motivation means जो भी आप कर रहे हो उसको करने के लिए आप कितना क्या हो, determined हो. Then attitudes determines know well, determines how well you do it, or attitude means to perform that work, उसको किस वे में आप परफॉर्म कर रहे हो. ओके, सो दीज थ्री थिंग्स आर very much tactful according to the chapter. Okay, then see, I told you na children ki there is a suspense, है ना. So what was the suspense, what was the suspense is, so one was the main character whom, Dr. Harry. The beginning also I told you that the chapter will move around, Dr. Harriet and dog. And what was the name of the dog? The name of the dog was Tricky. Okay, so Tricky was sent to whom? Tricky was sent to hospital, or we may say that he was sent to a person, and the person was doctor himself. Okay, so he was sent to the hospital for the treatment. For what he was sent to the hospital? He was sent to the hospital for a special treatment. Okay, and during the treatment, one more person is also there. Who is the one, who is one more person? Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey is the another person. Okay, so Mrs. Pumphrey का जो कैरेक्टर में हमने रीड कर ही लिया, that she was having extra care. वो किसकी एक्स्ट्रा केयर करती थी, डॉग की एक्स्ट्रा केयर करती थी, है ना. अब नाउ इसने क्या किया, she starts sending what, she starts sending some eggs. उसने eggs भेजे, even a wine, है ना, और भी whatever, so many things, है ना, और we can say rum, है ना, many things, बहुत सारी different different things भेजी, so that Tricky को क्या हो सके, Tricky could easily build his what, Tricky could easily build his strength. But आपको लगता है कि क्या eggs, wine और ये सब कुछ जो है ये ट्रिकी को दिए गए होंगे? नो, ट्रिकी को नहीं दिए गए ये सब कुछ. ठीक है, ये सब कुछ किसने एंजॉय किया? All these things were enjoyed by whom? All these things were enjoyed by Dr. Harriet and his friends. And his friends. Okay, so जितनी भी things थी ये सारी की सारी किसने enjoy की?
डॉक्टर हैरियट ने एंड उसके फ्रेंड्स ने, है ना। सो जितना टाइम पीरियड के लिए ट्रिकी डॉक्टर के पास रहा, कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर 2 वीक्स। ट्रिकी उसके घर पर कितने टाइम के लिए रहा, 2 वीक्स के लिए। तो वो 2 वीक्स में जब मिसेस पम्फ्रे ने क्या भेजने स्टार्ट की, एग्स, वाइन्स एंड वॉट एवर, ब्रांडी, है ना, तो वो भेजा। तो वो सब कुछ किसने एंजॉय किया, डॉक्टर हैरियट ने एंजॉय किया। ओके, और डॉक्टर हैरियट ने एंजॉय किया, तो अब इस वजह से डॉक्टर, जब उसने देखा डॉक्टर ने दैट नाउ ट्रिकी इज फीलिंग वेरी वेल, अब ट्रिकी तो बिल्कुल सही हो गया, नाउ मिसेस पम्फ्रे इज कंटिन्यूअसली गिविंग मी अ कॉल एंड जस्ट आस्किंग कि व्हेन शुड आई कम टू कलेक्ट माय डॉग बैक। सो अब जो डॉक्टर हैरियट थे, ही वांटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब क्वेश्चन है बुक में, the question is given in the NCERT itself, कि why did Mr. Harriet or Dr. Harriet want to keep Tricky as a permanent guest? Why? Because ट्रिकी के बहाने उन्हें क्या मिल रहा था, सब कुछ ये मिल रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं ही वॉज वेरी मच परफेक्ट, है ना, वो परफेक्ट तो थे किधर, अपने प्रोफेशन में। ओके, बट when Dr. Oh, sorry, when Mrs. Pumphrey starts sending eggs, wines and so many other things for Tricky, तो उस टाइम पे वो परफेक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट होने लग गया, ग्रीड में कन्वर्ट होने लग गया, है ना। और डॉक्टर हैरियट क्या बन गए, ही बिकेम अ ग्रीडी मैन। अब वो खुद ही किसके ग्रीड में आ गए, फूड के, एक्स्ट्रा ईटिंग के ग्रीड में आ गए। तो इट मींस वी कैन से कि ट्रिकी वाली जो हैबिट्स थी वो ट्रिकी से निकल के किस में आ गई, डॉक्टर हैरियट में आ गई, है ना। इट वॉज जस्ट अ जोक, ऐसा कुछ भी राइट नहीं करना है ना, इट वॉज जस्ट अ जोक ओनली। ओके, सो मेन द क्वेश्चन इज व्हाई Dr. Harriet tempted, yeah, why was he tempted to keep Tricky as a permanent? So just because कि उन्हें सब कुछ things जो हैं, ये सारी things जो हैं, ये continuously मिलती हैं. Okay, so this is all about the chapter A Triumph of Surgery. Clear? So chapter is finished. Okay. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत फनी चैप्टर है ना, और एक्स्ट्रा केयर एंड सो मेनी मैसेजेस आर आल्सो हिडन, indirect messages are given in the chapter, hidden messages are given in the chapter. The thing is you need to find out all those, you need to search all those messages and write down your uh, just prepare the notes, है ना. The video is there with you only. Whenever you are facing any doubt, just click onto the video and see to it, go for it once, है ना. और एंड जैसे मैंने बताई, जो जो बातें साथ साथ में बता रहा हूँ, सी द स्लाइड इज देयर विद यू ओनली, स्लाइड्स हैं. ओके, जस्ट पॉज द वीडियो, write down your notes, write down your queries, and in the future whenever we'll be having a query class, live class we'll try to have a live class. In those live classes I'll try to solve your queries. Okay, so अभी तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है, अभी तो बहुत बड़ी जर्नी बाकी है ना. टोटल 28 चैप्टर्स आर देयर इन योर सिलेबस, सो 28 चैप्टर्स की जर्नी है ना. सो अगर अभी से आप लोग पढ़ने लग जाएंगे डे बाय डे, जैसे जैसे हम लोग वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, यू आर गेटिंग दी वीडियोस एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम बच्चों की सारी क्वेरीज को बहुत ही इजी वे में क्या कर सके, सॉल्व कर सके. ओके, सो द वीडियो इज देयर विद यू ओनली, जस्ट गो फॉर इट वंस इफ यू फील एनी ऑफ द डाउट, एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट विद अ वेरी न्यू चैप्टर. हो सकता है इसी का ही हो नेक्स्ट चैप्टर, और मे बी इट कैन बी फ्रॉम योर अनदर बुक. ऑब्वियसली 2 ही बुक्स हैं, है ना. सो ऑल द बेस्ट and go for your preparation. Thank you.